हाय गाइस, आपने पिछला वीडियो देखा होगा एंड उसमें हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 2.1 से पहले के एग्जाम्पल्स. इन दोज एग्जाम्पल्स वी लर्नड हाउ टू सॉल्व अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन. वी ऑल्सो लर्नड दैट व्हेन वी गो फ्रॉम LHS to RHS or from RHS to LHS, the signs get opposite. Plus becomes minus, multiplication becomes division, and vice versa. If you have any doubt, go to the timestamp 10 minutes 57 seconds of my video 2 from the playlist class 8 NCERT linear equations in one variable. And before moving ahead, अगर आप लोगों को बाकी exercises और NCERT के examples, RD शर्मा के important questions के solutions मेरे साथ करने हैं, then please hit the subscribe button जो red color का चमकता हुआ button है. And without any delay, let's move to solving more examples. Exercise 2.2 के examples NCERT के. And from here actually starts a very important concept. अगर आपको इस concept में थोड़ा doubt लगे तो clarification के लिए आप इस playlist की पहली video में भी जा सकते हैं. I will be putting the link of that playlist in this video itself. Problem statements. How do you begin? आप अप्रोच कैसे करोगे? वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू व्हेन यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस? सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल ट्रिक एंड दिस इज हाउ आई लर्न. जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है ना, जैसे कि हियर दे आर आस्किंग वॉट, तो ये जो वॉट लिखा हुआ है, इस वॉट को आपने एक्स बुला देना है. सो बहुत सिंपली क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा. Question says what should be added. So what will you do? You will just write. Initially you will write and then you will become so quick that you won't even have to write. So initially you will just write x instead of what. What ko I will replace with x. So you are writing x should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7. ओके, यहाँ पर मैंने बहुत सिंपली वॉट को x बना दिया है. बहुत सिंपली मैंने वॉट को x बना दिया है. नाउ वेरी सिंपली यू विल कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट that x should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7. This statement has to be converted in a numerical form. This is a sentence. What is this? This is a sentence. What do you want? You want it in a numerical form. Numbers के form में. Numbers के form में कैसे लाओगे जब एक चीज़ x है? We studied that in our first and second video. That is by making a linear equation. जहाँ पर एक चीज़ variable है जिसकी exact value we don't know and the others are constant जिसकी exact value हमें पता है. जैसे कि 10 is a constant, 7/2 is a constant, etc. etc. So very simply, how I will write it in a mathematical or a numerical or in a number format? See here, x, okay, should be added. Added means plus. Added to twice. Twice means 2 times. The rational number -7/3. तो twice किसका? -7/3 का. To get 3/7. यानी कि हमें ये सारी चीज़ें 3/7 के बराबर आ जाएं. बराबर means equal to. Remember from the first video, what did we learn? That all the LHS side becomes बराबर to all the RHS side. तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है? I'll just repeat this one more time आपके लिए कि x should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7. Is this right? This is completely right. Okay. Now solving this is very easy. We did this in the second video, but I'll still show you this example. Okay. So very simply पहले आप देखो x लिखा आपने 2 into -7/3 क्या होगा? -14/3
equal to 3 by 7. Now we have learned in the previous videos that all the constants will get together as one family and the variable will remain as it is जहाँ भी है. And also when we go from LHS to RHS, the signs get inverted. यानी कि from LHS to RHS, minus 14 by 3 will become plus 14 by 3. So let me just write it here. X is equal to 3 by 7 plus 14 by 3. And once you take the LCM and solve it as I have shown, you will get your answer as 107/21. तो इसका ये मतलब है कि जब आप -7/3 का ट्वाइस करोगे, इंटू 2 करोगे, और उसमें जब 107/21 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 3/7. दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. बहुत जल्दी से we will go to your example 6 on page number 20. The question says that perimeter of a rectangle is 13 centimeters. Okay, we have the perimeter. Then we have the width, which is 3/4 centimeter. Find the length. Okay, so I'll tell you how to proceed with this type 2 of the problem. Type 1 था where we had to form the linear equation, but इसमें if you will apply a bit of your concentration and your previous concepts, you'll know that there is already a linear equation formed. आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है. So very simply, first I will write what all is given to me. Given is that perimeter P is 13 centimeters. Okay, and W width is 3/4 centimeters, जिसको मैं लिख सकती हूँ 11/4 centimeters. हम सब ने fractions पढ़े हुए हैं. और length जो है वो मुझे पता नहीं है, right? ठीक है, no issues. Now you know that the perimeter of a rectangle is what? We all know that from our class 6th and 7th. We know, यहाँ पर हम लिखते हैं we know. देखो जो given था वो मैंने पहले लिख दिया, पर अब जो we know है, जो हमें पता है, अब मैं वो लिख रही हूँ. We know that perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus width. हमने ये करा है कि नहीं करा है? That perimeter is equal to 2 into length plus breadth, right? तो उसी फॉर्मूला में 2 into length plus width which is equal to perimeter, हमें जो जो पता है हम वो वैल्यूज डाल देते हैं. जैसे कि इस केस में हमें क्या क्या पता है? हमें पता है हमारी width और हमें पता है हमारा perimeter. तो वैल्यूज डालना इज़ वेरी इजी. 2 into L हमें नहीं पता, L हमें फाइंड आउट करना है, प्लस width हमारी थी 3/4 which was 11/4, और पेरीमीटर हमें दिया हुआ था 13. करेक्ट. इसको हम बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, है ना? देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाते हुए 2 इंटू ब्रैकेट खोलो 2L हो गया, प्लस ब्रैकेट खोला तो 2 इंटू 11/4 हो गया, तो 2 इंटू 11/4 इज इक्वल टू 13. ठीक है, अब ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे. करेक्ट, नो इश्यूज. 2L प्लस 11/2 इज इक्वल टू 13. वेरी सिंपल. ओके, आगे बढ़ते हैं. दिस इम्प्लाइज 2L is equal to 13 minus 11/2. Why is it a minus? It's a minus because 11/2 came from LHS to RHS. On the LHS side, the sign with 11/2 is positive. So RHS में जाकर it will become negative. Okay, let us solve this quickly. 2L is equal to 26 minus 11/2, which is equal to 15/2. ओके, 15/2. अब ये बताओ कि 2L में 2 और L मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक साथ,
right? We have done this in our second lesson, we have done this in our second video. So when 2 and L are getting multiplied on the LHS, so if something gets multiplied on the LHS, then वो RHS में जाकर डिवाइड होता है, या आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा सेकेंड वीडियो में, समझा होगा मेरे साथ, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं बहुत सिंपली इसको कैसे लिख सकती हूँ कि L इज इक्वल टू 15/2 डिवाइडेड बाय 2, राइट? क्योंकि 2 और L यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 जो एक कांस्टेंट है अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट होगा, तो वहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, क्योंकि जो चीज़ LHS में मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ RHS में जाकर के डिवाइड होती है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बहुत सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा दैट L इज इक्वल टू 15/4 सेंटीमीटर्स। इस 3 सेंटीमीटर्स आएगा। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं एक बारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप ये जान लो कि अगर आपको एग्जाम में आपने कोई लीनियर इक्वेशन बना दी है, एंड दिस इज प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव मेड अ लीनियर इक्वेशन योरसेल्फ और इफ यू हैव पुट इट इन अ फॉर्मूला एंड यू वांट टू चेक whether you have solved it correctly or not, or whether you have formed the linear equation correctly or not, then you have to apply this very very important trick. Okay, what is the trick? Trick is whatever value, whatever solution you have found, put it back in the linear equation. Okay, if it is coming correct, LHS में जो वैल्यू आ रही है, RHS में जो वैल्यू आ रही है वो सेम है, then you have absolutely no problems and you'll get your full marks. अगर आपने जो भी कैलकुलेट किया है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट। पहला आपने ट्राई करा इक्वेशन में डालना, दूसरा आप ट्राई करोगे क्वेश्चन में डालना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, लेट्स गो बैक टू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, आवर फर्स्ट एग्जाम्पल में वी सॉ कि हमने इंग्लिश में एक चीज़ लिखी थी और फिर नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करा था, राइट? सो यू हैव टू चेक कि आपने ये जो नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करा है, जब आप उसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो क्या वो सही बैठ रहा है? इज इट राइट? डज इट, व्हेन यू लिसन टू इट, डज इट सीम राइट? सो लेट अस जस्ट क्विकली रीकैप दिस एंड चेक वेदर द सॉल्यूशन वी हैव फाउंड इज राइट और नॉट। तो पहला तो इसमें हमें ये पता है कि भाई 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 13, क्योंकि 13 हमारा पेरीमीटर था। तो लेंथ दोस्तों हमने निकाली है 15/4, विड्थ हम लोगों को दी हुई थी 11/4। तो अब हम सिर्फ इसको पकड़ के सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये 13 आना चाहिए अगर हमारा सोल्यूशन ठीक है तो इसको सॉल्व करा आपने, क्या आएगा? 15 + 11 इज 26/4, करेक्ट? सो ये 2 4 को काटेगा और ये 2 काटेगा 26 को, तो आ गया 13। तो आपका आंसर आ गया है 13। इसका मतलब हमने करेक्ट सोल्यूशन किया है। इसमें आप क्या टाइप 2 कर सकते हो, आप कोई इंग्लिश में इसको डाल सकते हो, इस क्वेश्चन को आप नहीं डाल सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने इक्वेशन नहीं बनाई, पेरीमीटर की इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, आपको पहले से पता है। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं, उसमें आप जब इक्वेशन बना लोगे तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है ये इक्वेशन मैंने कहीं गलत तो नहीं बना ली। वो आप सॉल्व करके जब आप वापस उसको क्वेश्चन में पुट करोगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि नहीं, मेरा सोल्यूशन भी ठीक आया है, LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। और जब मैं ये बात को इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, मेरा क्वेश्चन में लिखा है, मेरा क्वेश्चन भी ठीक साउंड कर रहा है।